Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers. Welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to say on the topic of representation of the earth. This is the second chapter of class 6 in SST. Our first topic is globe. So what is globe? Globe represents the three-dimensional view of the earth. We can easily draw lines on the globe. These are imaginary lines. These are not original lines. These are only imaginary lines. If we divide earth into two equal parts from the middle, then this part will be called eastern hemisphere and this part will be called western hemisphere. If we divide earth from the middle, from the equator, this part will be called northern hemisphere and this part will be called southern hemisphere. And when we are going to say about important lines, then first line is equator line, which are situated, which are light at 0 degree, Apart from this, at the point of 23.5 degree in the northern hemisphere, Cancer line is present, and 23.5 degree in south, Capricorn line is present, and upper side at the point of 66.5 degree, Arctic circle is present, and 66.5 degree in south, Antarctic circle is present. And there are a lot of lines. When we draw lines from North Pole to South Pole, these are longitudinal lines. But when we are going to write from the west to east line, these are latitudinal lines. Okay, so 90 lines can be written from the equator to upper side like this way, and 90 lines can be written from left to right in the southern hemisphere. In this way, 180 lines can be written as a latitudinal lines. And when we are going to write longitudinal lines, then longitudinal lines 180 lines can be written in western hemisphere and 180 lines can be written in eastern hemisphere. That's why 360 lines can be written in this sphere. Okay, and season are caused due to when the earth is moving around the sun, just like winter, summer. These are the seasons. When the earth is moving around the sun, season are caused. But there are some limitations of the globe. Do you know, we cannot easily carry this globe everywhere. Okay, we cannot show the specific part of the earth, just like mountain, plateau, plains, etc. देखिए ग्लोब है क्या. ग्लोब जो है अर्थ का 3 डायमेंशनल व्यू शो करता है. अगर हम मैप की बात करें तो ये 2 डायमेंशनल व्यू अर्थ का शो करता है. अब अगर हम पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बीच से ऐसे बांट दें खड़ा, तो इस साइड का भाग ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध बोला जाएगा और पीछे का भाग पश्चिमी गोलार्ध बोला जाएगा. अगर हम अर्थ को बीच से बांट दें, जैसे कोई गेंद हो उसको बीच से काट दिया जाए, तो क्या होगा, ऊपर वाला भाग जो है उत्तरी गोलार्ध होगा और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध होगा, और इधर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध है. ठीक है, तो इस पर ढेर सारी लाइंस स्थित हैं. जैसे ये लाइन जो है इक्वेटर है और 23.5 डिग्री पर कैंसर लाइन है, 23.5 डिग्री पर साउथ में कैप्रिकॉर्न लाइन है, इधर आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री पर, और इधर जो है इधर भी अंटार्कटिक सर्कल है. ठीक है, तो ढेर सारी लाइंस इस पर ग्लोब पर खींची गई हैं. ठीक है, तो इससे ढेर सारी लाइंस के विषय में हमें बहुत सटीक जानकारी जो है मिल जाती है ग्लोब से. इसके साथ साथ वी कैन ईजिली नो द कंटिनेंट एंड ओशन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोब. ग्लोब की सहायता से हम कंटिनेंट और ओशन सबके विषय में बहुत आसानी से जान सकते हैं. ओके, और ग्लोब
की कुछ सीमाएं हैं, जैसे हम इसे आसानी से हर जगह नहीं लेके जा सकते हैं। और पृथ्वी के अगर स्पेसिफिक पार्ट की बात करें, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, ठीक है, तो इन सब के बारे में, जैसे गांव हो गया, विलेज एरिया हो गया, इन सब के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी ये ग्लोब नहीं दे पाता। ठीक है, ये इसका लिमिटेशंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैप। Map can be drawn on the flat surface. This is the flat surface. Map can be drawn on the flat surface, but it is not flat. This is not flat. It represents two-dimensional view of the Earth. Earlier I have told the distance. These are latitudinal lines. Do you know the distance between one line to another line is 1 degree, and 1 degree is equal to 111.14 kilometer, and 1 degree is equal to 4 minutes. So very few minute details can be shown on the map, and map has a quality to show large areas as well as very small areas, and geographic elements can be easily shown on the map, like mountain, plateau, plains. We can easily show on the map. And do you know, the person who are making these maps, they are known as cartographers, and the science is known as cartography. देखिए मैप क्या होता है। जिस प्रकार हम लोग ग्लोब के बारे में जाने, ग्लोब तो गोलाकार है, स्फेरिकल शेप में है, लेकिन मैप जो होता है फ्लैट सरफेस पर होता है, और ये 2 डायमेंशनल होता है। वहीं ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल था, और यहाँ पर मिनट डिटेल्स को बहुत अच्छे से शो किया जा सकता है। जैसे एक जो है इक्वेटर से लेके 1 डिग्री के बीच में जो है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है 1 डिग्री का होता है, और 1 डिग्री जो है 111.14 किलोमीटर के बराबर होता है, और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया दोनों को शो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मैप पर ज्योग्राफिकल एलिमेंट को शो किया जा सकता है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया। आप अलग अलग मैप में इनके बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लोग मैप को बनाते हैं वो कार्टोग्राफर्स बोले जाते हैं, और इसका अध्ययन जिस साइंस के तहत किया जाता है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ द मैप। देखिए कंपोनेंट क्या क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज स्केल। देन व्हाट इज मैप स्केल? मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. It means 1 centimeter is equal to 5 kilometer. 1 centimeter, if we are going to represent 5 kilometer, then we are measuring 1 centimeter on the map. देखिए स्केल है क्या? स्केल जो है 2 स्थानों के बीच की दूरी ही है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे 5 किलोमीटर की दूरी को माप रहे हैं तो वही दूरी हम अगर मैप पर मापने जाते हैं तो वो केवल 1 सेंटीमीटर में मापेंगे। ये सुपर कंपोनेंट होता है। ओके, our next topic is direction. There are 8 directions in the map. Okay, like east, west, north and south, and northeast, northwest, southeast, southwest. These are 4 intermediate directions we can easily show. And do you know the north pole and south pole are the cardinal points? That's why this name was baptised. Northeast and northwest, southeast and southwest. Okay, but there is a great importance of compass. If you are traveling in the sea, there will be a problem to find out directions. In that case, compass will help you. What is compass? Compass is a metallic. Compass is an electronic device that shows directions, but we should keep this compass away from the metallic object. If we are using metallic object, then it will give false reading. Here is a figure of compass. This is the pivot of the compass, and these are needles. And compass was discovered in China during the Han Dynasty in 2nd century. So don't forget this fact. If you are knowing one direction, you can easily find out other directions.
ओके, तो डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जो है ये दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, और जैसे यहाँ तो हम बहुत आसानी से दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन अगर समुद्र में चल रहे हों, जैसे हिंद ओशियन में जा रहे हों इस शिप की सहायता से, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है दिशाओं का ज्ञान करने में। ठीक है, तो वहाँ पर ये कंपास हमारी हेल्प करता है, और कंपास इसका आविष्कार जो है चाइना में हुआ था। लेकिन जब भी हम कंपास को यूज करते हैं तो इसे मेटलिक ऑब्जेक्ट से दूर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है नीडल होती है मैग्नेटिक होती है, तो मेटल की ओर अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये कंपास जो है चाइना में डिस्कवर्ड हुआ था, और ड्यूरिंग द हान डिनेस्टी के समय में ऐसा हुआ था। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स। We can easily represent forest, rivers, hills, roads through some symbols. Symbols, these are conventional symbols. If you are not knowing the language of the map of any other country, there will not be any problem in another country, because these symbols help us. Like roads, international symbol of road, this is, and state symbol, this is, and river symbol, this is, and diversity, this is. So we are using same maps, same symbols all over the world, so there will not be any type of difficulty to find out directions and symbols. देखिए सिंबल है क्या? सिंबल जो है, सिंबल की सहायता से हम फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स, रोड्स इन सब को शो करते हैं। और अगर हमें किसी देश की लैंग्वेज नहीं मालूम है फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मैप में जो सिंबल्स हम यूज करते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि यही सेम मैप और सेम सिंबल को हम जो है अदर कंट्रीज़ में भी यूज करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूस ट्री के लिए ये सिंबल यूज होता है, रिवर के लिए ये सिंबल यूज होता है, इंटरनेशनल रोड के लिए ये सिंबल होता है, स्टेट रोड के लिए ये सिंबल यूज होता है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलर। कलर, देखिए कलर के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। थ्रू कलर वी कैन रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज, जस्ट लाइक ब्लू कलर रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट plains, if we are going to represent plateau and hills, then we are using yellow and orange color, and if we are going to represent snow capped areas, then we can easily use white color. देखिए कलर से हम जो है मैप को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जैसे हमें वाटर को रिप्रेजेंट करना है तो ब्लू कलर से यूज कर लेते हैं, जो है प्लेन एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो ग्रीन एरिया से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और प्लेट्यू और हिल्स को रिप्रेजेंट करना है तो येलो कलर से यूज कर देते हैं। इस येलो कलर और ऑरेंज कलर से स्नो कैप्ड एरियाज है तो उसको वाइट कलर से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप्स। देखिए फर्स्ट इज लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स शो स्मॉल एरियाज, इट शोज द डिटेल्स ऑफ सिटीज एंड विलेज, माउंटेन्स एक्सेट्रा, लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखिए लार्ज स्केल मैप जो है स्मॉल एरिया शो करता है, वहीं स्मॉल स्केल मैप क्या करेगा, लार्ज एरिया को शो करेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पर लार्ज स्केल मैप जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैप्स की। स्मॉल स्केल मैप्स शोज लार्जर एरियाज। देखिए जस्ट अपोजिट है इसके, स्मॉल स्केल मैप्स शोज लार्जर एरियाज। वर्ल्ड मैप, continents and countries can easily be shown on small areas scale maps like 1 centimeter is equal to 100 किलोमीटर। देखिए स्मॉल स्केल मैप है, देखो 1 सेंटीमीटर से हम 100 किलोमीटर को माप ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोज द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ विलेज, सिटी, कंटिनेंट। पॉलिटिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो करता है, जैसे विलेज की बाउंड्री हो, सिटी की बाउंड्री हो या कंटिनेंट्स की बाउंड्री हो, इसे हम आसानी से पॉलिटिकल मैप से शो कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू एंड रिवर्स एक्सेट्रा। देखिए फिजिकल मैप जो है फिजिकल फीचर्स को शो करता है, जैसे माउंटेन का जो ऊपरी सतह है वो बहुत शार्प होता है। प्लेट्यू क्या होता है, इट इज़ एन अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ द अर्थ।
पृथ्वी का ऊपरी भाग मतलब उठा हुआ भाग होता है, लेकिन इट इज़ नॉट एज शार्प एज माउंटेन। रिवर्स आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो ये फिजिकल फीचर्स को शो करता है कौन? फिजिकल मैप। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप shows the particular theme such as average distribution of rainfall, average distribution of crops, average distribution of population। ये थीमेटिक मैप शो क्या करता है? थीमेटिक थीम शो करता है। जैसे एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहाँ पर कितनी बारिश हुई उसका एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जानते हैं आप कि बारिश को भी मापा जा सकता है। इसके लिए एक जो है डिवाइस है जिसका नाम है रैनगॉग, ठीक है। तो इसी तरह इसको मापा जाता है थीमेटिक मैप से। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लान। व्हाट इज प्लान? ए प्लान इज द लेआउट ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री एंड प्लेग्राउंड। देखिए प्लान क्या होता है? किसी बिल्डिंग, किसी फैक्ट्री या प्लेग्राउंड का एक खाका होता है। जैसे आप अपने घर में जो है, आपको जब घर बनवाना होता है तो घर में कहाँ पर गेस्ट रूम होगा, कहाँ पर जो है डाइनिंग रूम होगा, तो इसकी व्यवस्था आप करते हो ना। जैसे कहाँ वरांडा होगा, तो ये इसका एक खाका जो होता है, उसका एक प्रारूप जो होता है, उसी को प्लान बोलते हैं। नेक्स्ट एटलस। एटलस, व्हाट इज एटलस? एन एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड एंड कंटिनेंट। ये तो आपको पता ही होगा कि मैप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैप्स होता है। जैसे वर्ल्ड मैप में आप देखते हो माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, इन सब का कलेक्शन होता है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। देखिए मैप की जो है हिस्ट्री क्या रही है। अर्लीस्ट मैप वॉज डिस्कवर्ड इन 2300 BC ऑन अ क्ले टैबलेट। अर्लीस्ट मैप वेयर मेड इन 2300 BC ऑन क्ले टैबलेट। देखिए ये पहला जो मैप बना था वो क्ले टैबलेट पर बना हुआ था, लेकिन ये इट शोज ओनली बाउंड्रीज। लेकिन ये पहले केवल बाउंड्रीज को शो करता था। इसके बाद एस्किमोज ने क्या किया? एस्किमोज प्रिपेयर्ड मैप बाय सीविंग द एनिमल्स स्किन। उसके बाद आफ्टर दैट इजिप्शियन मेड मैप्स ऑन द मेटल प्लेट्स, एंड आफ्टर दैट Ptolemy and Egyptian prepared map, and it shows the scale with the help of scale and direction. When he prepared map, he already told that Earth is an spherical shape like this. That's why he is known as the father of map making. देखिए हिस्ट्री क्या रही है। जो पहला जो मैप बना था मेसोपोटामिया में 2300 BC में एक मिट्टी के टैबलेट पर बनाया गया था, और वो केवल और केवल उसकी बाउंड्री को शो करता है। और इसके बाद एस्किमोज ने क्या किया? जानवरों की स्किन को यूज किया और उसको कलर करके मैप बनाया था। इसके बाद मिस्रवासी, जिसे इजिप्शियंस बोलते हैं, उन्होंने मेटल प्लेट्स पर मैप बनाया। उसके बाद टॉलमी आते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने स्केल और डायरेक्शन का यूज करके मैप बनाया, और इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मैप मेकिंग बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।